हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ सी दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. The first question here is verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x. This is a given cubic polynomial, and then verify the relationship between the zeros and its coefficients. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट में हमको वेरीफाई करना है दैट दिस आर द जीरोज. दैट मीन्स व्हाट, हम ये वैल्यूज जो है दैट इज़ 3, एक बार हम 3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x एंड विल शो दैट इट इज़ इक्वल्स टू 0. पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है 0. एंड सिमिलरली -1 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन -1/3 एंड विल शो दैट व्हेन वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से दैट दिस आर द जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल. Understood? So first polynomial जो है p of x is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. So first we are going to put x equals to 3 put करते हैं in p of x. So therefore it will become p of 3 will be nothing but 3 into x cube, so 3 cube minus 5x square, that is 3 square minus 11 into 3 minus 3. Okay, so 3 cube is 27 minus 5 into ये हो जाएगा 9 minus 11 into 3, that is 33 minus 3. Okay, so 3 into 27, that is 81. It is 81 minus 45 minus ये minus 33 minus 3 is minus 36. Okay, now 81 minus 45 will be nothing but 36 minus 36, and that is nothing but equals to 0. So we are getting that p of 3 is nothing but equals to 0. So 3 is the 0 of this given polynomial. Similarly we are going to put x is equals to minus 1 in p of x. So therefore p of minus 1 will be nothing but 3x cube, so minus 1 cube minus 5x square, so that is minus 1 square minus 11x, so 11, that is minus 1 minus 3. So 3 and minus 1 cube will be nothing but minus 1, then यहाँ पर minus 1 square है, so minus 1 square will be nothing but 1, so 5 into 1 हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 1 11 minus 3, so it will be minus 3 minus 5 plus 11 minus 3 is 8, so here it will be minus 3 minus 5 is will be minus 8 plus 8, so it will be equals to 0. So therefore minus 1 is the 0 of the given polynomial. Similarly we are going to put x equals to minus 1/3 in p of x. Therefore p of minus 1/3 will be nothing but equals to 3x cube, so 3x cube minus 1/3 the whole cube minus 5x square, so minus 1/3 the whole square minus 11 into x, so that is minus 1/3 minus 3. Understood? Okay, so it will be 3 minus 1 cube will be minus 1, and 3 cube will be nothing but 27, then minus 1 square will be 1 and 3 square will be 9, so it will be 5, 1/9 हो जाएगा. then यहाँ पर पावर 1 है, so यहाँ पर साइन जो होगा माइनस ही रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, so 11 into 1 11/3 minus 3. Okay, so now this 3 into 9 27, so it will be minus 1/9 minus 5 into 1, that is 5/9 plus 11/3 minus 3. Okay, so अब क्या करते हैं यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, दैट इज़ 1, सो LCM लेंगे 3 9 और 1 का, so it will be nothing but 9.
सो इट्स 9, ऑलरेडी यहाँ पर 9 है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा -1, यहाँ पर भी 9 है तो इट विल -5, और 3 इंटू 3 इज़ 9, सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो 33 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 9, सो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 9 दैट इज़ 27, अंडरस्टूड। सो -1 -5 दैट इज़ -6, एंड 33 माइनस 27 इज़ +6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, सो -6 + 6 will be 0 by 9, that is nothing but 0. So again we are getting the value as 0. So ये तीनों जो values है वो हमने जब यहाँ पर substitute किया, so we are getting that polynomial is nothing but equals to 0. So therefore 3 minus 1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial. अब वो statement लिख देना. Okay, now these are the 3 zeros. अब हमको verify करना है the relationship between the zeros and its coefficient. जो हमने लास्ट सेशन में डिराइव किया था रिलेशन, वो हमको वेरीफाई करना है. ओके, सो द 3 zeros आर नथिंग बट 3 -1 एंड -1/3. तो हम उसको अज्यूम करते लेट इट बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा. सो लेट इट बी अल्फ़ा बी 3, बीटा को हम -1 ले लेते हैं एंड गामा एज -1/3. हाँ, अल्फ़ा बीटा एंड गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं द 3 zeros एंड कोएफिशिएंट्स. सो अब यहाँ पर कोएफिशिएंट a, दैट इज़ x क्यूब का कोएफिशिएंट जो है a, दैट इज़ 3, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ b, दैट इज़ -5, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ नथिंग बट c, दैट इज़ -11, एंड द कांस्टेंट टर्म d, दैट इज़ -3. ओके, हेलो बच्चों, आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर? यू आर थिंकिंग दैट इन विच फील्ड यू शुड गो टू मेक योर करियर? जैसे कि लास्ट टाइम अनअकैडमी हैज ऑर्गेनाइज करियर क्वेस्ट, जहाँ पर कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया गया, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, और यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ये फील्ड्स के बारे में बात किया गया. बट अगर आपको ये फील्ड्स में नहीं जाना है, यू वांट टू मेक योर करियर इन अनकन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, लाइक यू वांट टू बिकम आरजे, you want to become wildlife photographer, or you want to become an author, or you want to become an anchor. So ऐसे फील्ड्स में अगर आपको करियर बनाना है, so again Unacademy is organizing career quest on 20th of December 2020. So जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, अगर आपको कोई भी फील्ड में करियर बनाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपका जो इंटरेस्ट है एंड आपका जो स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं. ये सारी एनालिसिस करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर फील्ड में आप जाते हैं तो आई एम श्योर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे वो फील्ड में. सो ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट, जहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स आपको आएंगे और गाइड करेंगे और नॉलेज देंगे कि पर्टिकुलर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. So speakers like Gautam Bhimani, who is sports presenter and commentator, आपने इनको टीवी पे देखा होगा. Kunal Vijaykar, who is author and TV personality. Phillip, who is wildlife photographer. Shabnam Pandey, who is lawyer, activist and politician. Arun Joseph, who is radio jockey, that is RJ, and TV anchor. So ऐसे और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं टू हेल्प यू आउट एंड टू क्लियर ऑल दिस कंफ्यूजन जो आपको ये फील्ड्स को लेके है. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. ये सेशन जो है वो टोटली फ्री है, और ये फ्री कंटेंट जो है या फ्री सेशन जो है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, एंड दैट इज RL तिवारी. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. It will be very helpful for you. Thank you. So verification जो है वो हम यहाँ पर करते हैं, that is the relationship between the zeros and the coefficients. So first the sum of the zeros, the sum of the zero, that is alpha plus beta plus gamma. So what is alpha plus beta plus gamma? So alpha is 3, beta is -1 plus gamma, that is -1/3. So it will be nothing but 3
प्लस इंटू माइनस माइनस वन माइनस वन बाय थ्री. सो अगेन यहाँ पर हम अगर LCM लेते हैं, यहाँ दिस इज नथिंग बट वन, दिस इज नथिंग बट वन. सो LCM ऑफ 1 and 3 is 3. सो 1 into 3 is 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, सो 9. सो 1 into 3, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ ऑलरेडी 3 था, सो माइनस वन. सो इट विल बी 9 minus 3 is 6 minus 1, that is 5. So it will be 5 by 3. So we are getting that the sum of the zeros, that is 5 by 3. Then अभी हम b माइनस बी बाय ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज b? b is nothing but minus 5. So it is minus 5. So it's minus b by a. So minus, and b का वैल्यू माइनस 5 है. a का वैल्यू क्या है? 3. So minus into minus, it is plus. So 5 by 3. So this 2. So we are getting that the sum of the zeros, that is equals to 5 by 3, and minus b by a is also 5 by 3. So therefore for this given cubic polynomial, sum of the zeros is nothing but equals to minus b by a from 1 and 2. समझ में आया? यही हमने रिलेशन डिराइव किया था कि हमेशा द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए. सो ये यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर लिया फॉर अ गिवन cubic polynomial. Okay, the same way अभी next हम करेंगे the sum of the product of two zeros taken at a time, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha या alpha into gamma. Understood? So the sum of the product of the zeros taken two at a time, मतलब दो zeros का product और उनका sum जब हम लेंगे, so it is nothing but अभी यहाँ पर हम now alpha into beta. So alpha is 3, beta is minus 1. So alpha into beta, so 3 into minus 1 plus beta into gamma. So beta is minus 1, gamma is minus 1 by 3. ये दो zeros जो है, plus gamma into alpha. So gamma is minus 1 by 3 and alpha is 3. अल्फ़ा क्या है? 3. अंडरस्टूड? सो नाउ अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, एंड यहाँ माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. सो इट विल बी प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा, एंड यहाँ 3 विल गेट कैंसल्ड, तो बचेगा प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस 1 हो जाएगा. ना हम यहाँ पर LCM लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर हम 3 कर देते हैं यहाँ पर. सो 3 और 1 का LCM 3 हो जाएगा. सो यहाँ पर 1 इंटू 3, सो ऊपर भी माइनस 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऑलरेडी 3 था, सो इट विल बी 1 इंटू 3, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 3 हो जाएगा. सो माइनस 9 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 8, एंड माइनस 3 दैट इज़ माइनस 11 हो जाएगा. इट विल बी माइनस 11 बाय 3 आ जाएगा. सो दिस इज़ इक्वेशन 3 दैट वी आर गेटिंग. अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस 1 बाय 3. Now we are going to take the value of c by a. Next is c by a. Okay, c by a, what is c here? The value of c is minus 11 by a is 3. So it is minus 11 by 3. So that is 4. So from 3 and 4 we can say that the sum of the product of two zeros taken at a time जो है दैट इज़ माइनस 11 बाई 3 आ रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू सी बाई ए. सो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए. सो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया फॉर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा. सो अल्फ़ा बीटा गामा, सो अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ minus 1 into gamma is minus 1 by 3. Okay, so now this 3 and 3 will get cancelled क्योंकि सब multiply इधर है. So now यहाँ पर क्या हो जाएगा? It's 1. So 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into minus 1 is 1. So इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 आ जाएगा. So इसको हम 5 कंसिडर कर लेते हैं. So this is alpha beta and gamma. Now we are going to take minus d by a. So minus d, value of d is minus 3. So minus 3
बाय ए का वैल्यू क्या है 3. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 3/3 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1. सो hence we are getting again from 5th and 6th that alpha into beta and gamma is nothing but equals to minus d by a. So this is the third relationship. The product of the zeros is nothing but equals to minus d by a. Understood? So this is how we can verify the relationship between the zeros and the coefficient of a cubic polynomial. एंड ये रिलेशन कैसे आया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ये सारे रिलेशन आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर हमने ये रिलेशनशिप जो है वो डिराइव किया. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन. अब यहाँ पर क्या दिया, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a plus b, find a and b. सो यहाँ पर हमको a and b फाइंड आउट करना है. ओके, सो नाउ हमको 3 ज़ीरोज़ दिया है. इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ और इसको गामा. सो लेट अल्फ़ा बी a माइनस b, बीटा इज a एंड गामा इज a प्लस b. सो दिस आर द 3 ज़ीरोज़ हमको दिया हुआ है और हमको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. Okay, so now we are given with the zeros, so we know that the sum of the zeros is nothing but equals to minus b by a. बट यहाँ पर हम माइनस बी बाई ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो ज़ीरोज़ है वो भी ए और बी के फॉर्मेट में दिया है. तो मैं माइनस बी में डायरेक्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूँ. सो वी नो दैट द सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस b क्या होता है, इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अंडरस्टूड? सो इट्स माइनस b बाय a. सो कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर भी b है तो ये b अलग है और जो कोएफिशिएंट हम ले रहे हैं वो b और a अलग है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज वहाँ पर. सो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इज़ -3. सो माइनस ऑफ -3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ नथिंग बट 1. क्या है, दैट इज़ a जो होता है दैट इज़ नथिंग बट 1. एंड वी नो दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा. सो अल्फ़ा इज़ a माइनस b, सो इट इज़ a माइनस b प्लस बीटा इज़ a plus gamma is a plus b. Now, so alpha that is a minus b, beta is a and gamma is a plus b is equals to minus 3 by 1. Understood? Because the sum of the zeros is nothing but minus b by a, that is nothing but minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Understood? So अब यहाँ पर देखिए minus b and plus b get cancelled. So a plus a that is 3a is equals to ये हो जाएगा 3 by 1 that is nothing but 3. So the value of a will be nothing but 3 by 3, that is the value of a is nothing but 1. Understood? So we got the value of a from the first relationship between the sum of the zeros and the coefficients. से वो relation से हमको a का value आ गया. Now we can use the product of the zeros, that is alpha, beta and gamma. So alpha, beta and gamma का जो product होता है is nothing but equals to minus d by a. क्या होता है, minus d by a. So that is nothing but minus d क्या होता है, constant term. क्या होता है, constant term by a. A is the coefficient of x cube. A is the coefficient of x cube. Okay, so equals to minus constant term. तो यहाँ constant term that is 1 by कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1. हाँ, दैट इज़ a. यहाँ पर दैट इज़ 1. सो माइनस 1 by 1 इज़ नथिंग बट माइनस 1. नाउ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. सो व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ a माइनस b, दैट इज़ द 3 zeros. सो अल्फ़ा a माइनस b है. सो इट इज़ a माइनस b इंटू बीटा. बीटा इज़ a एंड गामा इज़ a प्लस b. हाँ, gamma is a plus
Okay, so now a minus b, a plus b. So we know this identity that a minus b, a plus b is a square minus b square. So we can write a square minus b square, इन दोनों का प्रोडक्ट into a equals to minus 1. Now we already got the value of a का वैल्यू क्या है 1, so we can substitute it. So 1 square minus b square into a का वैल्यू 1 equals to minus 1. So 1 square is 1 minus b square into 1. So into 1 करेंगे that means the same thing, that is equals to minus 1. So 1 minus b square is minus 1. So minus b square, अब 1 को हम वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं. So minus 1, ये 1 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो minus 1 हो जाएगा. So it will be minus b square equals to minus 2. Now this minus and minus get cancelled here. So ये हो जाएगा b square equals to 2. Now the value of b will be nothing but taking square root. So b will be nothing but equals to plus or minus square root 2. And 2 is not a perfect square value. So we'll write it as plus or minus root 2. Understood? So this is how we can find the value of a and b. Okay. So यहाँ पर हमने माइनस बी बाई ए एंड यहाँ माइनस डी बाई ए फॉर्मेट में नहीं लिखा, क्योंकि ए और बी जो ज़ीरोज़ है वो भी ए और बी के फॉर्मेट में दिया है. सो कन्फ्यूजन ना हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वहाँ पर आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी हमको मालूम है बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. या तो आप उसको ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम यहाँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर ए और बी डिफरेंट होता है बट क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब करना पड़ता है, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक हो जाता है. तो इट्स बेटर जब भी आपको ऐसा ज़ीरोज़ ए बी और सी के फॉर्मेट में ऐसा कुछ दिया है तो बेटर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए. होप यू हैव अंडरस्टूड. If still you have any doubt in any part of this question, so you can write in the comment section. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.